दिख रहा है इधर देखो, एक दो एक दो एक दो मीन्स एक ब्लॉगर को झेलना होता नहीं है, अभी दो दो ब्लॉगर, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ लिटरली। আমরা জাস্ট হসপিটাল থেকে ফিরেছি একটু আগে। তো আজকে আমাদের সমস্ত টেস্ট রিপোর্ট মেলে এসছে। তো আমাদের হার্ড কপিগুলো পেতে পেতে হয়তো একটু সময় লাগবে। তো আমরা রেডি হয়ে বেরোবো ঠিক করলাম, কিন্তু যেটা হলো বাইরে সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অলরেডি, সেটা তোমরা হয়তো আওয়াজ পাচ্ছ। বাইরে রীতিমতো আওয়াজ পড়ছে, মানে বাইরে রীতিমতো মেঘের গর্জনও হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো ওয়েট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আজকে দুখানা জায়গায় আমাদের যাওয়ার ছিল, সেটা এখন আমরা বলবো না, বৃষ্টিটা একটু কম হোক আমরা বেরোবো, মানে যাই হোক না কেন আজকে আমরা যাচ্ছি ওখানে। তো বৃষ্টি একটু কম হোক, ওয়েট করি, দেখি কী হয়। আর নাহলে রেইনকোট করেই বেরিয়ে যাবার তো কোনো উপায় নেই। আজকে যেখানে এসেছি এইটা তোমরা হয়তো দেখে কতটা বুঝতে পারছো জানি না, তবে এটা একটা ওয়ার্কশপ বলা যেতে পারে। যারা বাইক লাভার, যারা বাইক ভালোবাসো, যারা রাইড করতে ভালোবাসো, যারা বাইকের অ্যাক্সেসরিজ ভালোবাসো, বা যারা বাইককে মডিফাই করতে পছন্দ করো, মানে বাইকটা বলতে গেলে ফার্স্ট লাভ, তো সেই রকম একটা জায়গায় আমরা আজকে এসেছি এবং খুব ভালো লাগবে আশা করছি তোমাদের। আমি একটু একটু করে দেখাচ্ছি কি রয়েছে এখানে, কি কাজ হয়, আমরা কি জন্য এসেছি। তো মানে কি বলবো, আমাদের এটা একটা ড্রিম কাম ট্রু, ঠিক আছে? আমরা আজকে যার সাথে দেখা করতে এসেছি একটা ড্রিম কাম ট্রু, তো খুব ভালো লাগছে। আর বাকিটা আমরা শেয়ার করছি আস্তে আস্তে। ভিডিওটা দেখো, পুরোটা না দেখলে বুঝতে পারবে না। তো বৃষ্টি নামলো, বাট ওয়েট করতে করতে একটু লেটও হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমরা বৃষ্টির মধ্যেই স্কুটি চালিয়ে রেইনকোট পরে আমাদের বলছিলাম যেখানে আসবো, তো সেটা তোমরা দেখে বুঝতে পারছো কিনা জানি না। অবভিয়াসলি এটা গ্যারেজ তো বোঝাই যাচ্ছে, বাট কিসের গ্যারেজ না গ্যারেজ? ওয়ার্কশপ, হ্যাঁ ওয়ার্কশপ গ্যারেজ, যেখানে রিপেয়ারমেন্ট হয়, নতুন পার্টস বানানো হয়। তো আমার পেছনে একজন বসে আছে, চিনতে পারছো কিনা জানি না, একটু কাছে যাই। अरे भाई साहब गोली लेके मार रहे हो, इतना बड़ा लेंस, इतना बड़ा कैमरा, इससे भी बड़ा लेंस था उसके पास, इतना बड़ा लेंस था। क्या बात कर रहे हो भाई? 70-200। मैं कहाँ पे? তো জুনেদ ভাই আজকে বেরোনোর আগের ব্লগটা এডিট করছে, তো এডিট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সাথে একবার কথা বলবো আমরা, তারপর আমরাও বেরিয়ে যাব। তো একটু ওয়েট করে নিই, জুনেদ ভাই এডিটটা কমপ্লিট করে নিক। আমি একটু বাইরে থেকে দেখে আসি, কারণ আমরা যখন জাস্ট ঢুকলাম তো সেই সময় জাস্ট কারেন্ট অফ হয়ে গেছিলো। এটা হচ্ছে আর্ট অফ মোটরসাইকেল। এবার তোমরা বুঝতেই পেরেছো আমরা কার সাথে কথা বললাম, জুনেদ ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তো আমরা যখন আসছিলাম জাস্ট কারেন্ট অফ হয়েছিল, তো আমরা কিছু বার করতে পারিনি, ক্যামেরা সব কিছু। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে সব পার্টস তৈরিও হয়, মডিফাই হয়, সব কিছু হয়, রিপেয়ারমেন্ট হয়, সব কিছু হয়। ও এটা হচ্ছে জুনেদ ভাইয়ের বাইক, যেটা নিয়ে জুনেদ ভাই
লাদাখ রাইডে বেরোচ্ছিল, বাট সেটা একটা স্টোরি আছে, স্টোরিটা পরে বলছি। স্টোরিটার জন্য আমি বলবো না, স্টোরিটা জুনেদ ভাই বলবে যে আজকে গিয়ে কেন শুরু হলো না রাইডটা। मैं उड़ने वाला था, तो जो भी बोलता है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए। तो अभी ये तैयार, अभी बक्से भी मैं लगेज खाली नहीं किया है, सब कुछ है, बैकअप का सिर्फ इसे डालना है, निकलना। शर्माता है मैं बहुत, खुद अपने कैमरा ऑन करने के लिए ना 100 बार सोचता है। फोटोज पकड़ी वो भी, वो कंपेयर कर ले को ये कर लो, कनेक्ट टू द GoPro ऐप। ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए भाई। तो ये हैं हमारे घर आए हुए हैं, ये भी हमारे घर आए हुए हैं। वो मेरा भाई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है अभी। कनेक्शन सही है, अंदर में कुछ है ये, इसको वारंटी भी खत्म हो गया है, इसलिए इसने नहीं करेगा। लूप भी आपने ऑन नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं है। तो साउंड का तो नहीं प्रॉब्लम, साउंड ही तो नहीं देगा, कोई तो नहीं प्रॉब्लम। ये तो गए हो। हम ये लेंस देख किन्ने के आदि है, छोटा छोटा, और ये लेंस देखते हैं ना, ऐसा लगता है कोई बैल घूर रहा है भाई। बट नाइस टू सी यार, वाओ। ये 7S 1635 Remaster मेरा खरीदा नहीं पड़ा। वो कैमरा इक्विपमेंट्स लेंस सब भरा हुआ है। जैसे मेरा ये कमरा है, सेविंग्स नहीं है, कुछ भी सेविंग्स नहीं है, सब कैमरा और सेम बाइक है। के अंदर गाड़ी सब गाड़ी चला गाड़ी। गया पैसा। अपना गाड़ी है, रोड है, ऑफ रोड है, बस यही चल रहा है। माई ड्रीम एक्चुअली, मैं बहुत दिन से आइटम मोटरसाइकिल फॉलो कर रहा था, मतलब जोई भाई या जुनेद भाई दोनों को ही मैं फॉलो करता हूँ। तो इन दोनों का जो भी मतलब बाइक के बारे में जो तजुर्बा है, जो भी एक्सपीरियंस है, मैं फॉलो करता हूँ। और इतने दिल से कोई नहीं, मुझको लगता है इंडिया में कोई दिल से इतना सपोर्ट नहीं करता कोई बाइकर्स को, मुझको ही लगता है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी तो मैं बैंगलोर आने का नेक्स्ट टाइम, मतलब मैं 2 साल बाद बैंगलोर आया, तो मेरा ये था ड्रीम था, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो आइटम मोटरसाइकिल में ज़रूर विज़िट करूंगा। और हम लोग का जो स्टार्टअप हो रहा है उसके बारे में उन लोगों का भी सपोर्ट भी चाहिए, उसके बारे में मैंने बात कर रहा था अलग से। और जुनेद भाई बिजी है थोड़ा एडिट करने में, तो मैं जोहिब भाई से पूरा आइटम मोटरसाइकिल के बारे में बोल रहा था, मैं ये कैसे हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। थोड़ा आप अगर मतलब जोहिब भाई के मुंह से अच्छा लगेगा, तो मैं माइक्रोफोन जोहिब भाई को ही दे रहा हूँ। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स तो ये हमारी दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ है और ये पूरा बना है पैशन के ऊपर। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स भी जो भी बना रहे हैं सब इन हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। और जो भी बाइक्स या ट्रॉफीज आप लोग देखे रहोगे, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे रैली बाइक्स में टेस्ट हुए हैं। और सारे प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर इन हाउस भी होता है। तो हर साल मतलब नए मोटरसाइकिल्स आते हैं, नए ट्रैवलर्स आ रहे हैं, नए मतलब पैशनेट रेसर्स आ रहे हैं। तो उनको फुलफ़िल करना ही हमारा काम है और करते आ रहे हैं। और जगह भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आने के बाद कभी बाहर कहीं घूमने का दिल भी नहीं करता है। पूरा दिन मेरा इधर रहता है, मतलब अलग लोगों को मिलता हूँ मैं। मतलब आज भी आए थे, मतलब डेफ एंड डम 2 लोग, ना बात कर सकते ना सुन सकते, मगर दोनों भी पैशनेट बाइकर्स हैं। तो बहुत सारी मतलब ऐसे फीलिंग्स हैं और बहुत सारे लोगों को मुझे भी यहाँ पर मिलने का होता है। अभी भाई भी आए, 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, बेंगलुरु में बारिश है मगर फिर भी मिल गए हम लोग। आज शाम में फ्री थे तो बहुत अच्छा लगा। कोलकाता से अभी रिसेंटली कोई मुर्शिदाबाद से भी आए थे, कोई गैंगटॉक से आए थे। तो हमें भी अच्छा लगता है। यही चीज़ है कि बाइकिंग कम्युनिटी का जो कल्ट है, ये बाइकिंग जो ब्रदरहुड है, ये बस एक चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये सबको मिलके और सबके साथ चलेंगे जब ही ये बाइकिंग कम्युनिटी भी बनेगा। बाइकिंग एक लाइफस्टाइल है ना, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड लॉकडाउन में मैं और जुनेद भाई 2.5-3 महीने हम लोग कोविड में एम्बुलेंस चला रहे थे। हाँ, तो हमें बीबीसी से और सारे मतलब जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज है, बोले कि बाइकर्स टर्न्ड आउट टू बी एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ये क्या कहाँ से सीखते हैं हम लोग? ये अपना बाइकिंग कल्ट ही है। अभी एक बाइक ख़राब होती है, अगर हमारी बाइक अच्छी भी है तो उसको पूछ के ही जाते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे को करके। तो ये हमारा इनर सेंस है। तो एक को तकलीफ में नहीं देख सकते,
तो अपना कल्ट और अपना बाइकिंग कम्युनिटी भी यही सिखाता है कि सबको साथ में लेके चलना है और एक्सप्लोर करना है, सेफ से करना है। आने वाली जनरेशन को भी इसको पैशन में, अपने पैशन को ही प्रोफेशन में भी टर्न आउट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस दिल से करना चाहिए। देखो हम लोग मतलब अभी ये 13 साल हो गया है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स को आते हुए। यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जुनेद भाई से वर्कशॉप, अपने घर के अंदर जो कार का पार्किंग एरिया रहता है वहाँ पर स्टार्ट किए थे, वो खुद की मतलब रेसिंग की बाइक्स बनाने के लिए। तो वहाँ से दोस्त से दोस्त ऐसे ही होते होते अभी यहाँ पर आके 11 साल हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसमें गिव एंड टेक है, दोनों तरफ का चलता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आप कितना भी एक्सपीरियंस राइडर रहो, कभी आज के नए जनरेशन से भी हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कभी बहुत सारे पुराने राइडर्स हैं तो नए राइडर्स उनकी बात सुनेंगे तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है। तो बस कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम भी आज भी पैशनेट बाइकर हैं, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, बाइक बनाना अच्छा लगता है। अगर वो एक चीज़ अगर अच्छी लग जाएगी तो फिर हर एक चीज़ अच्छी लगने लगेगी। बस बड़ा छोटे की बात भी नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, सबसे सीखना ही है। बड़ा एकदम आपने सही बोला है ना, क्योंकि मतलब हम लोग वेस्ट आजकल- बंगाल कलकत्ता में मतलब मैं फिर सामने आ जाता हूँ। हाँ जो मतलब आप लोग का फैन फॉलोअर्स तो सारी इंडिया में है, लेकिन कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में बंगाली लोगों में जो मतलब चार्म है बाइकिंग का, तो आप लोग उसमें बहुत खास जगह में हो। जी मतलब हम लोग फॉलो करते हैं आप लोगों को, तो उसी हिसाब से आप लोगों को मतलब थैंक यू बोलना बहुत कम, कुछ नहीं, बोलना नहीं, पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत बस। कम। मैं तो खुद रात जग के आप लोगों का ब्लॉग जो भी आता है, आप लोग को बाइक के ऊपर जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं देखता हूँ एकदम। हाँ बस लोगों का प्यार है, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हम लोग भी यहाँ तक आए हैं। इतना बड़ा कुछ सोशल मीडिया में हम लोग नहीं किए हैं, बट जितना भी हैं क्वालिटी लोग हैं, देखो सबसे मिलते हैं। कोई ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग या ऐसा कुछ नहीं मिलना करके नहीं है। हम लोग नॉर्मल ही लोग हैं, सबकी तरह पैशनेट हैं, बस जी रहे हैं हमारी ज़िंदगी बस। यही चाहिए और क्या इससे चाहिए ज़्यादा बस। कुछ नहीं। बहुत खुशी हुई, मतलब कोलकाता से आए, बारिश पड़ रही थी, आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग जब आए आटो मोटरसाइकिल पे तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था जुनैद भाई को मिलेंगे, जुनैद भाई रहेंगे, तो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो उनका आज राइड था लद्दाख वाले, आज हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ हो गया इसलिए उनको लौटना पड़ा। तो क्यों लौटना पड़ा वो आज का ब्लॉग में आप देख सकते हैं। तो ये जुनैद भाई का बाइक देख लीजिए। इसका एक क्लच का प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसका एक क्लच का प्रॉब्लम हो रहा था ना, व्हील बेरिंग। अच्छा ओके। तो आज का ब्लॉग जुनैद भाई डालेंगे तो इसके बाद में डालूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली व्हील बेरिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए और भी एक कारण था, वो जुनैद भाई खुद बोलेंगे, और इसलिए लौट आए जाते जाते। प्रोजेक्ट ओपन किया, यू कैन ऑल्सो यहाँ पे क्या आता है ना, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट है, यू कैन गो विद 1:1, 9:16, 4:3, 21:9, 16:9 इज व्हाट वी ऑल यूज। और अगर आपको स्क्रीन ये करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, ऑटो फ्रेमिंग ये ट्रैकिंग करना है, और इंस्टेंट कट करके इंस्टाग्राम या किसी के लिए चाहिए, और यहाँ पे ये हो जाता है। तो वी यूजुअली यूज दिस। और यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को यूज़ किया, कोई भी मेरे को फुटेज उठाना है ना, So, good morning everyone. Welcome back to तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिलेक्ट करके डाल सकते हैं? 100 ऑडियो फाइल्स एंड 100 वीडियो फाइल्स। ऊपर 100 है, नीचे 100 वीडियो फाइल्स है। एंड यहाँ पे सब कुछ है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप है, और यहाँ पे आपको स्टॉक फुटेज, ऑडियो फ्री, वो भी म्यूजिक भी देता है, अच्छा, कॉपीराइट फ्री। कॉपीराइट। और यही मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो हेलमेट, अच्छा हेलमेट में भी और एक तो मैं 2 GoPro और एक ड्रोन, और ये अपना जो इसका चार्जिंग का जो भी हो रहा है, जहाँ पे 2 कैमरामैन है, एक प्रोफेशनल, एक मोबाइल। मैं भी GoPro लेके बैठ जाता हूँ। हम बताइए जी।
हाँ, जो जानना है कि आप जब राइड पे निकलते हो तो आपके पास क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें, कितना पीसेस होता है, कितना पीसेस चप्पल, कितना पीसेस मतलब डेली वेयर का चीज़ जो होता है कपड़ा वपड़ा, वो कितना? ट्रैक पैंट टी शर्ट जो मैं अपने राइडिंग गियर के अंदर जर्सी होता है, हम लोग पहनते हैं जर्सी, अंदर ट्रैक पैंट, उसके ऊपर राइडिंग गियर, जैकेट, ख़त्म, ग्लव्स, हेलमेट। और लगेज में क्या रहता है, मतलब? लगेज में टूल्स रहते हैं, स्पेशल टूल्स, एंड जहाँ पे भी हमारा आदत है, जहाँ पे भी मौका मिला गाड़ी को खोल दिया। नहीं, वो नहीं, मतलब मैं पूछ रही थी कि आपके पास 2-4 बैकअप तो क्या बैकअप? वो कपड़ा का टी-शर्ट, कपड़ा पैंट। देखो, जैसे मेरा 3-4 महीने का राइड होता है, या 45 डेज मिनिमम पकड़ के चलो, तो हम सिचुएशन दो ही टाइप पे आते हैं। मेरे पास अभी 2 डेनिम रिजर्व में होते हैं, एक जूता स्पोर्ट शूज़ रिजर्व में होता है, पर और 3-4 शर्ट रिजर्व में होता है, हाँ, वही पूछ रही थी। और इनरवेयर्स 5 नाइट के लिए, और सॉक्स 5, मीन्स इंक्लूडिंग द वन विच आई विल बी वेयरिंग। एंड उसके बाद क्या, टॉयलेटरी किट तो टॉयलेटरी किट है, फर्स्ट एड किट है, और बस अगर मैं माउंटेन जा रहा हूँ, लंबा टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो एक राइमर और एक डाउन फेदर जैकेट, वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, जब ज़रूरत है तो ही निकलता है, पर वही है 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, जिसमें 3-4 तीन, महीने के। हाँ 3 डेनिम, 5 टी शर्ट, 5 सॉक्स, 5 अंडरवेयर्स, और 2 या 3 ट्रैक पैंट्स। ओके, जो बिकॉज मेरे को हर दिन मैं ट्रैक पैंट पहन के जर्सी पहन लेता हूँ, और जर्सी भी मेरे पास 3 है, तो उसी को रोटेट करके 5 इसलिए क्योंकि मेरे को 5 दिन में मेरे को 2 यानी ट्रैक पैंट 3 जो होता है ना, 2 दिन ये नहाने के लिए गया तो वो ट्रैक पैंट लेके गया, धो दिया, जर्सी भी धो दिया, तो सुखाते कहाँ पे हो? बाहर रूम में जहाँ पे आप रहते हो, स्टे करते हो? स्टे करता हूँ वहीं, सुखा दिया, सवेरे तक सूख जाता है, बॉक्सर पहन के सो गए, अच्छा। बस। और एक क्वेश्चन है, आप अपने साथ खाने की चीज़ क्या क्या कैरी करते हो? कॉफ़ी, ओनली कॉफी? हाँ ब्लैक कॉफी? हाँ, डेविडॉफ का एक अरोमा करके एक गोल्डन कलर आता है, वो मैं कैरी करता हूँ, और स्टोव एंड ये सब कुछ कैरी करता हूँ, पर अभी इंडिया में उतना जगह बचा ही नहीं है जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकें, जहाँ पे हम स्टोव, इट्स नॉट नो मोर सेफ। किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, खाली जगह पे हम टेंट लगा के बैठ जाते हैं, तो पहले था, अभी नहीं है। अगर आप किसी के घर पे टेंट भी लगा के बैठते हो तो वो बोलेंगे खाना हमारे पास खाना पड़ेगा, पैसे इतना देना पड़ेगा, तो eventually we are staying in hotel to hotel. It is not the good old times where we can stay in a ढाबा, और ढाबा तो अभी भी स्टे करता हूँ, पर जितना भी अपना ये है ना, टेंट और स्लीपिंग बैग इसी साल मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। खाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाता यार। नहीं, वो होता है ना कि बहुत ज्यादा रास्ता है जहाँ पे खाने का कुछ नहीं मिलता है, Then 3-4 घंटा, अपना भूख लगने के बाद। देखो, वहाँ ऐसा है कि मेरे को पता है कि 4-5 दिन मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और आई नीड टू सर्वाइव ऑन माई ओन। सिंपल फूड है, ट्रैकिंग के लिए यू ईट डिहाइड्रेटेड दाल मिलता है, डिहाइड्रेटेड अंडा भी मिलता है, कोई भी कहीं पे भी जाते हो तो ट्रैकर का कोई ना कोई दुकान मिल ही जाएगा, प्रोटीन बार भी मिलता है वो सब। हाँ। टिन विन से जो लोकल ट्रैकर्स जो होते हैं ना, जो अपने माउंटेनियरिंग वाले जो लोग होते हैं ना, गाइड्स होते हैं ना, उनके पास मिल जाता है दाल, राजमा, अंडा तक वो लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर करके रखते हैं। तो सिंपल चीज़ है, गर्म पानी डालो, उबालो और पक गया खाना। या ईट व्हाट द लोकल्स ईट। तो वहाँ पे जब कोई नहीं है, कहीं ना कहीं तो एक विलेज होगा वो क्या जो भी नेचुरल फिश है तो हंट कर लेते हैं। अगेन आई हैव हंटेड फिशेस, आई हैव ईटन फूड। पिछले साल आप लोग उमिंगला जब गए थे उस टाइम तो वहाँ पे पूरा एकदम बंजर पूरा था। हाँ, पर दैट ईयर, लास्ट ईयर व्हेन आई वाज डूइंग उमलिंगला, आई वाज डूइंग विद इंडियन आर्मी, वेटरन राइड था, तो ऑब्वियसली आर्मी हैड टेकन केयर ऑफ अस। लकी है ना। सब कुछ मतलब खुद मतलब ओपन हो गया। हाँ, पर लकी एनफ दैट आई हैव डन एवरीथिंग बिफोर
anybody came. चाहे शिंकुला टू ले हो जंस्कार, या बिहाइंड पेंगोंग हो, या उमलिंगला हो, या कोई भी हो, जनता जनार्दन घुसने से पहले मैं भग चुका हूँ वहाँ से. सो दैट गिव्स मी अ न्यू ऑलवेज कि एक ही जगह जाने का वो मज़ा नहीं आता है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव न्यू प्लेसेस. तो वही चल रहा है. जैसे 2018 में मैंने जंस्कार और बिहाइंड पेंगोंग दिया था. 2019 में नहीं गया तो जुहैब का व्लॉग मैंने एडिट करके डाल दिया. 2020 ये अपना शिंकुला टू ले वो वाला सीरीज़ डाला था. एंड 2021 के टाइम पे करगैक नहीं उमलिंगला, केला पास, अपना तिमेस्गम, सस्पोल एंड अपना गैटो लाटो गया. ये हाँ, क्योंकि एवरी टाइम डूइंग द सेम प्लेस एंड क्रिएटिंग द सेम कंटेंट डजंट मेक सेंस. मैं तो खारदुंगला जाके हो गया, 2017 में गया था मैं. इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मजाक खराब हो गया ना. ऑफ रोड नहीं, जो जिस चीज़ के लिए हम लद्दाख जाते थे, वी यूज्ड टू गो, इट वाज एन अचीवमेंट टू रीच ले. फॉरगेट अबाउट खारदुंगला, टू जस्ट रीचिंग ले, and the journey of reaching Leh, the time which used to take 3 days to reach Leh from Manali, and 2 to 3 days to reach from Srinagar, passing Zozilla to going through those like अपना रोहतांग, कहानियाँ, that वो जो मज़ा था ना, प्रिपरेशन, वो एक्साइटमेंट, वो मज़ा, आज क्या है? कोई भी जा सकता है. पर कोई भी जा सकता है इसी वजह से है ना, आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं who are not prepared. I have seen too many people who have come and they have said they just land from the airport. हाँ, मेरे को नुब्रा पेंगोंग 3 Idiots वाला जगह जाना है. हाँ, मीन्स उतरे नहीं, टैक्सी लेके जाना है. मैं बोला 4 सीढ़ियाँ चढ़ लो, उसके बाद बताओ. ज्यादा कुछ नहीं है, शांति स्तूपा भेज दो ना, सब खत्म हो जाएगा. शांति स्तूपा नहीं, वहीं पे जहाँ पे भी है वहाँ पे 4 सीढ़ियाँ चढ़वा दो और एक बार भगा दो, खुद ही समझ जाएंगे. खुद ही खत्म हो गई थी शांति स्तूपा चढ़ने में 4 बार ब्रेक हो गया. भाई साहब, सब मेरा एवरीडे का है ना, जब मैं ले में जाके रहता हूँ, दैट्स माय एवरीडे थिंग टू क्लाइंब शांति स्तूपा इन द मॉर्निंग, और एटलीस्ट डू गो टू द अदर साइड, ओल्ड सिटी, वॉक अप टू द माउंटेन एंड कम बैक. It's nice. मेरा क्या है ना, see, we have seen the beauty of Leh. Now, if you ask me, is it beautiful? No. There are places apart from Leh or Pangong or what do you say? Means एक वो भेड़ चाल हो चुकी है आजकल. हर जगह जाना है, रील बनाना है. हाँ, ये बहुत आज के जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. रील बनवाना है, रील बनाना है, मिलियन तक व्यू अगर आए तो बहुत. नहीं, व्यू का छोड़ दो, मेरे को इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल, दे आर एंजॉइंग इट. पर लास्ट ईयर आई कुडंट गो टू शांति स्तूपा बिकॉज पहली बार जब गया था ना, तो आई सॉ सम, में ठंड है भाई, नवंबर है, अक्टूबर नवंबर में people wearing this many clothes. I'm not body shaming or anything, but एक बंदा सपेरे की तरह ऐसे 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 जाता रहता है और एक नागिन घूमती रहती है और सिर्फ म्यूजिक बाकी होता है. आई थिंक वो रील में पड़ जाता है. तो नागिन और सपेरे हर जगह मिलते हैं. तो इतने महीने भर बाहर रहते हो, तो फैमिली को मिस नहीं करते हो, या फिर फैमिली से कोई भी आपको नहीं बोलता है कि आप हम लोग के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो ऐसा कुछ? See, there is a difference between नॉर्मल इंसान एंड पागल. मैं पागल की कैटेगरी में आता हूँ, एंड दिस इज माई लव. जब प्यार होता है ना सच्चा, तो या दुनिया तुमको मार देती है या तुम दुनिया को मनवा लेते हो. सच बात है. बीवी का कॉल आ रहा है, नाम देख लो. हेलो,
दूसरे को देखकर ब्लॉग बनाना है, बाइक राइड करना है, राइड करने के बाद ब्लॉग बना के डालना है, सब्सक्राइबर बनाना है, ऐसा ऐसा है। तो आपका क्या मैसेज है हाँ, इस जनरेशन के लिए? मैं जनरेशन के लिए मैसेज नहीं है, मैं किसी को प्रीच नहीं करता। मतलब न्यू हाँ, न्यू जो हाँ बाइकर्स होता है मतलब उनकी ज़िंदगी, वो जो भी करना चाहे वो कर ले, इट्स देयर माइंडसेट। मेरा क्या है, जब मैंने चालू किया था तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट था पर वही साइबर सेंटर पे 20 रुपए, वो सेल फोन्स में कुछ नहीं। हाँ बहुत पहले की बात है। सो फॉर अस, बिकॉज ऑफ द लव एंड द पैशन टुवर्ड्स मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिलिंग, वी आर हियर, ओके। एंड the simple thing about what I can say, learn. Rider जो होता है, there is a difference between a husband and a boyfriend, right? Similar way, boyfriend आज है कल नहीं, पर husband तो होता है ना। तो वैसे ही मोटरसाइकिल, मेरी जो भी मोटरसाइकिल होती है, I'm a husband. So I want to know everything about my love. I don't want to be just like a boyfriend. ये लिया, कल वो लिया, परसों वो लिया। लगाव होना चाहिए। पर ऐसा husband भी हूँ, because I'm a Muslim. I can have multiple wives. So that's how I have got 22 motorcycles. 22 मोटरसाइकिल्स। तो हम लोग जुनैद भाई के साथ थे इतने टाइम, मतलब बहुत डिस्टर्ब किया, परेशानी किया, मतलब आप स्टोरी में देख सकते हो क्या हुआ है। हाँ दिख रहा है, इधर देखो, एक दो मीन्स एक ब्लॉगर को झेलना होता नहीं है, अभी 2 ब्लॉगर, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ। लिटरली बहुत मज़ा आया इनके साथ। एंड फॉर्चुनेट आई एम हियर। एक्चुअली आई हैड टू बी इन हैदराबाद एंड ईटिंग हैदराबादी बिरयानी, पर किसी का दिल का बुलावा था, माया ने यू टर्न मार के इधर आ गए। और अभी जो बात कर रहे हैं, अभी भी 2 ब्लॉग बन रहे हैं। शर्म नहीं है लोगों को। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दे आर टू स्वीट, अमेजिंग पीपल। सॉरी आई कुडंट गिव एज मच ऑफ टाइम आई वुड हैव गिवन, बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग माया, टॉकिंग टू दैम एंड ऑल्सो एडिटिंग एंड अपलोडिंग वीडियो। तो दैट्स हाउ इट इज। कभी राइड करेंगे साथ? जरूर, ये ख्वाहिश है हम लोग का एक साथ राइड करने का। फॉर श्योर। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू यहाँ और वहाँ दोनों के चैनल पे। अगर मेरे फैमिली के बंदे हो तो इनके भी फैमिली के बंदे बनो, और इनको भी जैसे मेरे को आगे बढ़ाया है वैसे इनको भी आगे बढ़ाओ। और दैट्स इट। लव यू ऑल। चलो।